नाइन्थ स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। डियर स्टूडेंट, we explain matter in our surrounding. Your topic name is matter in our surrounding. So now in the beginning we discuss about what is matter, what is the characteristics of matter, what is the particle nature of matter, and classification of matter on the basis of physical structure. Then what is the properties of solid, liquid and gases. Now in the just and that is in lecture number 4 we discussed about the interconversion of state of matter. Interconversion of state of matter. Interconversion of state of matter means solid changes to liquid, liquid changes to vapor or gas, gas changes to liquid, and liquid changes to solid. Okay, this is known as interconversion of matter. All things happening at the cost of temperature and pressure. ये जितना भी इंटरकन्वर्सन ऑफ मैटर हुआ है ये टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ही हुआ है. ओके, तो नाउ ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन जस्ट previous video, that is in lecture number 4, what is the effect of temperature on state change of matter, and in solid and liquid state there is no effect of pressure on state change of matter, but pressure affect the gaseous state. When we convert gases into liquid, then in these cases pressure play a very important role in the conversion of gas into liquid. Okay, now temperature is the main and important factor for conversion of matter from one state to another state, but pressure is play role on gaseous state only. याद रखिएगा इस बात को. गैस से जब लिक्विड बनाना है तो प्रेशर होगा, लिक्विड को जब गैस बनाना है तो प्रेशर होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन गैसियस स्टेट में प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो जैसे हम सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट किए थे, तो व्हेन सॉलिड हीटेड देन particles of solid start vibration. Particle of solid start vibrating. Okay, when solid heated, then the particles of solid starts vibrating. We heat regularly, that is continuously we increases the heating the solid here, continuously we supply the heat to the solid, then the vibration of the solid particle increases rapidly, and increased heat, increased temperature overcome the force of attraction between the particles of solid. वो जो टेम्परेचर दिए
वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर सॉलिड के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया। इन दिस वे सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। Again, liquid to gas, same thing is occurs. Okay, but gas to liquid, temperature decreases, kinetic energy of the particle decreases, and particles come closer to each other, and force of attraction increases gradually. In this way, gas liquid changes into solid. But in gas to liquid, when temperature decreases as well as pressure increases, दोनों काम करना होगा गैस से लिक्विड में लाने के लिए। टेम्परेचर को घटाना होगा और प्रेशर को बढ़ाना होगा, so that gases condenses, गैस कंडेंस में पार्टिकल जो बिखरा हुआ है वो एक जगह गैदर होगा, एक ग्रुप में आएगा, और टेम्परेचर इज फर्दर डिक्रीजेस एंड प्रेशर इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली, देन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कम क्लोज टू ईच अदर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस, intermolecular space between the particle decreases. In this way, gas is converted into liquid. Okay? तो ये हम डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ओके, अब इसमें आपको एक बात दिखा रहे हैं, कुछ बॉइलिंग, मेल्टिंग, ऑल आर प्रोसेस, but melting point, boiling point is a temperature of the substance, that is fixed temperature of the substance at which solid melts into liquid, solid starts melting, liquid changes into vapor or gas, liquid start boiling, that temperature is called boiling point or melting point. ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए मेल्टिंग। मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, बट मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच solid changes into liquid completely is called melting point. वह टेम्परेचर जिस पे सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए, that temperature is called melting point. Melting point depends on intermolecular force of attraction between the particles of solid. जिस सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत रिजिड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, इसी तरह से सॉलिड का जैसा पैकिंग वैसा मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बॉइलिंग, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। बट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट प्लेस टू प्लेस पर एक ही लिक्विड का वैरी करेगा, डिफरेंट होगा। अगर हम प्लेस बदल दें तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी लिक्विड को रूम में बॉयल करें, किसी लिक्विड को ओपन एटमॉस्फेयर में बॉयल करें, किसी लिक्विड को पीक ऑफ द माउंटेन पे जाके बॉयल करें, और वही लिक्विड मून के सरफेस पे बॉयल होगा, तो सब केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा?
तो बॉइलिंग पॉइंट का ये डिफिनेशन है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जैसे लिक्विड को हीट करेंगे वेपराइज होना शुरू होगा और वेपर का प्रेशर बनेगा। वह वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देगा तब लिक्विड बॉयल होने लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करता है। ओके, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इन जनरल हम लोग रूम में जो बॉयल करते हैं, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी 357 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोरोफॉर्म 62 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज all about what is melting point, what is boiling point, and what is the effect of change of temperature and pressure in the interconversion of matter. Okay, next जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे आपको लेटेंट हीट समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए, यहां हमने ग्राफ भी प्लॉट किए हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ग्राफ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इस एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, और यहां पे एक डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। There is no rise in temperature, means without rising the temperature, one state of matter is converted into other state. How it is possible? यह कैसे संभव है जबकि हम उसको कंटिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हैं? This is due to only latent heat. Something is hidden to the state of matter. Something is hidden to the state of matter and working gradually or progressively, which helps in the changing state of matter. Such hidden heat is known as latent heat. Such hidden heat is known as latent heat. यानी हर सब्सटेंस के पास, हर मैटर के पास उसके अंदर एक छिपा हुआ हीट होता है, जो हीट करने के बाद वह एक्टिव होता है और अपना काम करता है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। कैसे दिखाई नहीं पड़ेगा तभी बता रहे हैं, जो दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन वह अपना काम कर रहा है, स्टेट को चेंज करवा दे रहा है, सॉलिड को लिक्विड बना दे रहा है, लिक्विड को वेपर और गैस बना दे रहा है। वह हीट जो स्टेट चेंज ऑफ मैटर में हेल्प करता है, वह छिपा हुआ हिडन है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा और लेकिन अपना काम वह कर रहा है रेगुलरली। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, अभी देखिए आप समझिएगा। टेक ए बीकर, या एक बीकर है, एंड पुट 100 ग्राम क्रस्ड आइस, आइस को क्रश करके डाल दिया। आइस इज सॉलिड, आइस क्या है? सॉलिड है। और ये कितना ग्राम डाल दिया? मान लीजिए 100 ग्राम। आप 1 केजी भी ले सकते हैं, 500 ग्राम भी ले सकते हैं। तो टेक बीकर एंड पुट
crushed ice in beaker and beaker put on a tripod stand over copper wire gauge. Wire gauge is used for uniform heating. अगर हम कोई बर्नर लगाएंगे तो उस बीकर के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म हीट पड़े, उसी पर्पस के लिए वायर गॉज का यूज किया जाता है। एंड ए थर्मामीटर इज फिटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंड। एक थर्मामीटर को फिट किए हैं स्टैंड के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक बीकर लिए, बीकर में आइस को क्रस्ट करके रख दिए 100 ग्राम। अब एक थर्मामीटर को स्टैंड के द्वारा हम इस बीकर में सेट किए। नोब ऑफ द थर्मामीटर इंसर्ट इन द आइस और टचिंग द आई। ये जो नोब है थर्मामीटर वो आइस को टच कर रहा है। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर? तो थर्मामीटर का रीडिंग कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आइस कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे मिनिमम टेम्परेचर पे। तो अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजर में रखते हैं तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ये थर्मामीटर का रीडिंग कितना आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? आइस। Then we start heating the beaker with the help of spirit lamp or burners। कोई भी बर्नर हो या स्पिरिट लैंप हो, उससे बीकर को हीट करना स्टार्ट। आफ्टर हीटिंग ice gradually converted into liquid, that means ice starts melting. Regularly, after regular heating and heating continuously, आप रेगुलर हीट कीजिए और कंटिन्यूअस हीटिंग कीजिए। एंड when till the last piece of ice is not converted into water, जब तक कि last piece of ice water में नहीं बदल जाएगा, till the reading of thermometer is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझ गए, एक बीकर है, इसमें आइस रखे और एक थर्मामीटर लगा दिए, एक ग्लास रॉड भी लिए आइस को घुमाने के लिए, चलाने के लिए, और इसको हीट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली टेम्परेचर तो बढ़ रहा है अंदर में, फिर भी थर्मामीटर का रीडिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कब तक? जब तक कि होल आइस is not converted into water, means till the last piece of ice which is converted into water, तब तक थर्मामीटर का रीडिंग कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम कंटिन्यूअस हीट कर रहे हैं, आइस का एक एक टुकड़ा वाटर में बदल रहा है, हीट भी कर रहे हैं बीकर को। थर्मामीटर का रीडिंग कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो इसका मतलब कि विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर सॉलिड आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो वह सॉलिड आइस बिना टेम्परेचर के बढ़े, टेम्परेचर 0 डिग्री ही शो कर रहा है, वह लिक्विड स्टेट में आ गया। इसका मतलब आइस के अंदर कोई छिपा हुआ हीट था, जो टेम्परेचर जैसे हीट करते गए तो वह हीट एक्टिव हो गया और आइस के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता गया। वह टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते गया, और जिसके कारण की सॉलिड से वह लिक्विड बन गया। दैट हिडन हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो ये समझ में आ गया। अब ये जब सारा आइस लिक्विड बन गया और फिर भी हम इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हेन ऑल द आइस
is converted into liquid, and after that we continuously heating the liquid, then liquid start vaporizing, and gradually the temperature of thermometer increases, and when a liquid starts boiling, then the maximum temperature of thermometer reading 100 degrees centigrade. After that, when water start boiling, we heating continuously the beaker, we supply continuous heat, then there is no rise in temperature from 100 degrees centigrade. अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर नहीं बढ़ रहा है, और जबकि हम लगातार उसको हीट दे रहे हैं लिक्विड को, तो लिक्विड जब बॉयल करना स्टार्ट कर दिया तो लिक्विड बॉयल हो गया कितना डिग्री पे, 100 डिग्री पे, और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फिर भी लिक्विड थर्मामीटर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, till the all liquid vaporizes or converted into gas. कब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा? जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वेपर और गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ओके, तो यहां भी क्या हुआ कि लिक्विड से वेपर बन रहा है, लिक्विड बॉयल करके गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, फिर भी थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा है, उसके अंदर जो लिक्विड के अंदर जो एक छिपा हुआ हीट है, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको एक हम ग्राफ से प्लॉट किए हैं। इधर टेम्परेचर है -10 डिग्री, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री से 100 डिग्री। अब 0 डिग्री तक आइस है, 0 डिग्री तक आइस है, जिसको ए पॉइंट से इंडिकेट किए। ए से बी तक टेम्परेचर कितना डिग्री है? 0 डिग्री, यानी यहां पे सिर्फ आइस है। ठीक है, इस बीच में वाटर है, क्या है? अच्छा, इसको छोड़िए, ऐसे समझिए। -10 डिग्री से 0 डिग्री तक गए तो ये आइस था, ए से बी स्टेट तक गए तो टेम्परेचर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जबकि when heat supplied is used up changing the state, हम जो हीट दे रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो हीट स्टेट चेंज करने में खत्म हो जा रहा है, टेम्परेचर को राइज करने में खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हो गया यहां से। अब बी से सी पे गए तो सी पॉइंट पे वाटर स्टार्ट कर दिया बॉयल होना, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कितना डिग्री हो गया? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल कर रहे हैं, यहां से वेपराइज किया, वेपराइज किया, वेपराइज किया, पॉइंट सी पे बॉयल करने लगा, और सी से लेके डी तक वाटर बॉयल करने लगा, लेकिन टेम्परेचर थर्मामीटर का 100 डिग्री रह गया, और डी के बाद गैस बन गया पूरा, यानी डी पॉइंट के बाद सारा लिक्विड गैस में वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो सी से डी तक लिक्विड को टेम्परेचर दे भी रहे हैं, लेकिन सी से डी तक टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, लेकिन वेपराइजेशन स्पीड में हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है डी होल वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर एट दिस पॉइंट, और सी पे लिखा है वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग हियर। यहां से ए से लेके बी तक आइस था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड बनते गया, लिक्विड बनते गया, लिक्विड बनते गया। तो इसको लिख सकते हैं आइस, इसको लिख सकते हैं आइस वाटर। ठीक है, यहां लिख सकते हैं वाटर सिर्फ, और ये वाटर वेपराइज कर गया। तो ये स्टेट पे आइस है, ए से बी तक, बी से सी तक आइस भी है, वाटर भी है, चूंकि मेल्ट कर रहा है,
और सी डी पॉइंट पे वाटर है जो बॉयल कर गया और स्पेस में वेपराइज होकर के चला गया। तो विदाउट राइज इन टेम्परेचर दैट वन स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू a hidden heat in the substance which helps in state change of the matter. That hidden heat is called latent heat. ठीक है, तो ये तो अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, What do you mean by latent heat? Latent heat किसको कहते हैं? तो latent heat दो प्रकार का होगा, latent heat of fusion और latent heat of vaporization। latent heat कितना प्रकार का हो गया? दो टाइप का, latent heat of fusion और एक हो गया latent heat of vaporization। latent heat of vaporization। latent heat of fusion होगा solid to liquid, solid to liquid, और latent heat of vaporization होगा liquid to gas और vapor। तो latent heat मतलब hidden heat, छिपा हुआ हीट जो स्टेट चेंज करवाता है। अगर सॉलिड से लिक्विड बना तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से गैस बना और वेपर बना तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी किसी बुक में स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखा होगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक कब बनेगा? जब अमाउंट को फिक्स कर देंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेटेंट हीट को डिफाइन करेंगे, तब इसका नाम हो जाएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में अमाउंट बहुत जरूरी है डालना, तो लिखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका होगा अमाउंट ऑफ heat required to convert 1 kg of ice। क्या लिखे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of ice, 1 kg of ice, ice क्या है? Solid at its melting point without rise in temperature at atmospheric pressure is called specific latent heat of fusion। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो क्या हो गया?
स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of ice gas solid into liquid at its melting point without rise in temperature at atmospheric temperature. At its क्या लिखे amount of heat required to convert 1 kg of ice is a solid at its melting point into liquid, यहाँ सुधारिए, into liquid without rise in temperature is called latent heat of fusion. And latent heat of fusion का वैल्यू होता है 3.34 into न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये कैलोरी में भी आता है, उसको हम बताएंगे बाद में, कैलोरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का 3.34 into 10 to the power 5 जूल, इसीलिए हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ठीक आप डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, किसको डिफाइन कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम डिफिनेशन होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, लिखिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg नहीं, amount of heat required to convert 1 kg of water, water क्या हो गया, liquid, 1 kg of water at its boiling point into gaseous or vapor state without rise in temperature at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. किसको बोले latent heat of vaporization? Amount of heat required to convert 1 kg of water into 1 kg of water of its boiling point, at its boiling point into vapor state without rise in temperature at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। तो उसको भी लिखना है, लिख ही देते हैं, amount, इसका डेफिनेशन, amount of heat required to convert 1 kg of water, water liquid है, at its boiling point into vapor state without rise in temperature at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization, और इसका वैल्यू होता है 22.2 into 10 to the power 5 जूल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लीजिएगा, 22.2 into 10 to the power 5 जूल। 22.2 और 20 ना छोड़िए, इसी को 22.5 कर लीजिए, 22.5 into 10 to the power 5 जूल। डियर स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। अब
टेम्परेचर, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, सब्लिमेशन एंड इवोपोरेशन, ये हम तीनों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बाय।